लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया मैंने इस स्पोर्ट के लिए। 25 साल जिंदगी के जो मेजर थे वो इसी शूटिंग को ही दे दिए मैंने। एक तरीके से अपनी लाइफ को मैंने शूटिंग के लिए रख दिया और दे दिया। Good evening, everyone. My name is Harshit. I am representing Sports App, and we are here to join with a very special guest with us today. As we all know, Olympics is there on the head, and we are just we are just down with 10 days to go. So we had a very promising opportunity to meet with one of our Olympians who will be representing India for the second time in Olympics. So please welcome Mr. Miraj Ahmed Khan, who's a skeet shooter. Thank you so much, sir, for coming us today and spending time with us. And you can inspire upcoming athletes who will be representing India at various events. Absolutely. Thank you very much for connecting with me. Thank you so much, sir. Also, before we start off with it, I would like to announce that this webinar session has been sponsored by our brand partner, Man Matters. So yeah, let's start off with it. Okay, go ahead, please. Thank you. Yeah. So, sir, जैसे कि हम सब जानते हैं सर, आप ओलंपिक्स के लिए फॉर द सेकंड टाइम आप जा रहे हैं टोक्यो, एंड फर्स्ट टाइम आप रियो ओलंपिक्स के लिए थे 2016 में, वेयर यू स्टूड एट 9th पोजीशन. तो आई वांट टू नो मोर अबाउट यू, how things went with you, about yourself basically, and I want our viewers to know ki who exactly is Miraj Ahmed Khan. Of course, the whole world knows about you, but I want एक पर्सनल टच आपकी तरफ से कि who is Miraj Ahmed Khan, और थोड़ा सा आपके बारे में आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं तो. Miraj Ahmed Khan is a skeet shooter who's gonna represent India in the upcoming Tokyo Olympics, and already represented India in the Rio Olympics 2016. As you told earlier, I finished 9th. That was a very good experience for me in the Rio Olympic Games, where I finished 9th. Unfortunately, I am not able to win the medal for my country, India. And I have won the quota again for the Tokyo Games, and I'm preparing here right now in Italy with my coach. And on 16th of July, I will be leaving for Tokyo, inshallah. Lovely. Yes, Miraj Ahmed Khan, I born in a place in Uttar Pradesh called Khurja, district Bulandshahr. It was a very small town famous for pottery work, ceramics, and Okay. schooling is being done in Khurja only. I used to play cricket that time, and after joining the college in Delhi in 1996-97 in Jamia Millia Islamia, I have played cricket a lot of tournaments from University, Delhi League, and C.K. Naidu Trophy and Vinu Mango Trophy. The dream was to represent country in cricket that time, to wear the Indian flag. But I think I was not that kind of a cricketer who represent country, and unfortunately, I didn't make the Indian cut, the Indian team in the cricket. But the goal was same, the passion was same. So I moved into shooting. In 1995 was my first national championship competition held at Delhi only. I represented the UP state that time. And from there, I was looking to reach in the Olympics. I have worked almost 25 years to reach in the Olympic Games. And fortunately, I have achieved that in Rio 2016. I have won many medals in international and national level, Unfortunately, I didn't get the medal in Rio, but inshallah this time I will get. Definitely, sir. Basically, my viewers, they are very happy to meet you. They are very excited also to meet you, to know about you. वो जानना चाहते थे कि मिराज सर का ट्रेनिंग कैसा रहता है, उन्होंने कैसे स्टार्ट करा. सो आप थोड़ा सा अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली आप क्रिकेट खेलते थे पहले, नाउ यू स्टार्टेड इनटू, आपको 25 इयर्स लगे टू रीच द बेस्ट एट योर लेवल. नाउ आपने स्टार्ट कैसे करा शूटिंग, मतलब कौन कौन आपके लाइफ मेंबर ऐसे आपके लाइफ में थे लोग जिन्होंने आपको शूटिंग के लिए इंकरेज करा, या हाउ डिड यू डेवलप द स्पोर्ट, या फिर आपको आपने स्पोर्ट कैसे ढूंढा अपने लिए कि दिस इज द स्पोर्ट जिसमें मेरे को एक्सेल करना है, दिस इज द स्पोर्ट दैट आई फील आई कैन डू समथिंग इन दिस. No, shooting was in my family. My father was a shooter, and my first
competition was under 12 category in a district level competition, if you want to know about shooting. But shooting was always there, you know, but I never thought about shooting, that shooting will become my career sport, you know. The shooting was there always. My first competition, I still remember when I participated in the 50-meter rifle position, in three position in the district level competition at the age of 11 years old, you know. My father took me to the Bulandshahr. There was a competition happening, the rifle competition, district level competition, you know. So, but after I realized this in 1998, 1999, uh, when I see that the cricket is not going in a right direction. I'm not able to get into the big team like a Ranji Trophy or in the Indian cricket team. So I shifted my focus towards into skeet shooting, you know, more. And my first competition, international World Cup, was in 2003 in Italy only, in Lonato. Was my first international outside from India, you know. So it was in 2003. And after that, my major Sir, competition. I'm so sorry, sir. I'm interrupting you. थोड़े से हमारे जो ऑडियंस है, they are more educated. थोड़ा सा हम हिंदी में भी इस चीज को केटर कर सकते हैं, प्लीज. ओके, सो सॉरी. हाँ जी, हाँ जी, सॉरी. तो या 2003 में जो था वो मेरा पहला कंपटीशन था, जो कि इंडिया से बाहर था, इटली के अंदर ही था इनफैक्ट, और उसी रेंज पर था जहां मैं 2015 में रियो ओलंपिक गेम्स के लिए कोटा जीता था. लोनाटो एक जगह है, इटली के अंदर शहर है, जहाँ की वो शूटिंग रेंज पे मैं जीता था कोटा 2015 में रियो गेम्स के लिए. तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और वहीं से ही मैं कोटा जीता ओलंपिक गेम्स 2016 रियो के लिए. कहना बहुत आसान है ओलंपिक्स में जाना, लेकिन बहुत ही एक तरीके से लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया मैंने इस स्पोर्ट के लिए. सब कुछ छोड़ दिया, रिश्तेदारी, बहन भाई दोस्त अहबाब सब छूट गए, और सारी जिंदगी 25 साल जिंदगी के जो मेजर थे वो इसी शूटिंग को ही दे दिए मैंने. एक तरीके से अपनी लाइफ को मैंने शूटिंग के लिए रख दिया और दे दिया अपने कंट्री को. और मुझे खुशी है कि आज मैं अपने देश के लिए इतना कुछ कर पाया हूँ. शायद अगर मैं क्रिकेट में होता तो अब तक रिटायर हो चुका होता, यू नो, वहां पे. लेकिन शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां जब तक आप अच्छी बंदूक चला रहे हैं, आंखें आपकी अच्छा काम कर रही हैं, आप आगे बढ़ सकते हो. एब्सोल्युटली. इसमें सर, जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया कि आपने कैसे शूटिंग स्टार्ट करा, आपने कौन से लेवल पे खेला, फिर आप कैसे टोक्यो पहुंचे. अब छोटा सा आपको एक ये हमारी एक वो जर्नी होगी कि आपने कैसे स्टार्ट करा, फिर आपने अपने क्रिकेट खेला, फिर आपने नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक्स. अब थोड़ा सा हम चलते हैं आपकी अचीवमेंट्स. हमें पता ही है, यू रिप्रेजेंटेड इंडिया मेनी लेवल्स, बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे. आपने वर्ल्ड कप खेला है, आपने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेली, आपने एशियन चैंपियनशिप्स खेली हैं. मैं आपसे थोड़ा सा आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा. जब फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स के लिए गए थे, रियो के लिए, क्या फीलिंग थी वो? क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो फर्स्ट टाइम जाएंगे टोक्यो के लिए. तो आप वो एक्सपीरियंस पहले ही कर चुके हैं, आज से 5 साल पहले जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे. तो थोड़ा सा आप उसके बारे में आप हमें बताएंगे, कैसी फीलिंग थी वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की? देखिए, जिस दिन मैं रियो पहुंचा हूँ ओलंपिक गेम्स से, जिस दिन मेरा कंपटीशन था, मैं उससे 2 दिन पहले रियो पहुंचा था. उससे पहले मैं ब्राजील में ही था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था एक और शूटिंग रेंज के ऊपर. लेकिन जो कहते हैं ना कि ख्वाब इतना बड़ा था कि जिस दिन मैं रियो पहुंचा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सच हो गया है आज. वो विलेज में जाना, ओलंपिक गेम्स का एक्रेडिटेशन आपके गले के अंदर पड़ा होना. तो मैं जब रेंज के ऊपर पहुंचा हूं तो मुझे खुशी हो रही थी, मैं एक्साइटेड था, समझ रहे हैं आप. और आप यकीन मानेंगे, अब लोग कहते हैं कि कहना आसान है, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था ओलंपिक गेम्स का कि मैं ओलंपिक गेम शूट करने आया हूँ. मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ख्वाब है मेरे लिए जो मैं आज पूरा करने वाला हूँ. और मैं बाखुदा आपको बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके गया था, और इस बार भी मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ. बाकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं. वो मैं कहना नहीं चाहूंगा कि जी मैं जीतूंगा या हारूंगा. वो जो अल्लाह ताला देना चाहेंगे वो ही मिलेगा आपको इन दी एंड. डेफिनेटली सर. ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, लोगों को आज पता चलता है. कुछ छोटी सी चीज, जैसे हमारे बहुत सारे भी व्यूअर्स हैं सर जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स जाएंगे, या फिर जो फर्स्ट टाइम साउथ एशियन, एशियन गेम्स या ऐसे खेले हैं टूर्नामेंट्स.
तो उनके लिए आप एक छोटी सी कोई एडवाइस सब आपके मन सब में होगी? सबसे सबसे बड़ी जो एडवाइस है ना, वो है सेल्फ बिलीफ। आपको ये बिलीव करना चाहिए कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं वहां पर। समझ रहे हैं आप? जब आपके अंदर ये बिलीफ होगी ना, तो जो फियर है, जो डर है ना आपके अंदर से, वो निकल जाएगा उसी वक्त। आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं जीत जाऊंगा, या नहीं नहीं वो अमेरिकन टीम बहुत स्ट्रांग है, या इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं इंडिया, हम तो इंडिया से आए हैं, हमारे पास इतना अच्छा वो फैसिलिटीज नहीं है अभी जो उनके पास टेक्नोलॉजी है। ऐसा मत सोचिए, हमारे पास सब कुछ है जो उनके पास है। हमारे पास भी दो हाथ हैं, उनके पास भी दो हाथ हैं। हमारे पास भी दो आंखें हैं, उनके पास भी दो आंखें हैं। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। वो भी यही सांस लेते हैं, हम भी यही सांस लेते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हमारी जो बिलीफ है, जो हमारा, जो हमने मेहनत करी है, वो आपको अपना 100% देना है उस दिन, मैच वाले दिन। आप रिजल्ट की चिंता ना करें। रिजल्ट तो आपको मैच के बाद खुद ही पता चल जाए ना सबको। ठीक बात है। ठीक है ना? उसमें आप पहले से सोचना शुरू कर दो, 4 दिन पहले से। अपनी नींद भी खराब करोगे, अपने कोच को भी परेशान करोगे, सबको परेशान करोगे। इसलिए फोकस उसी पे करो जो आपने सीखा है, और वही जाके करो जो आपने प्रिपेयर किया है। ये नहीं कि मैच से 2 दिन पहले आप कुछ और बदलना चाहो, कुछ नया, क्योंकि आप 2 दिन में नहीं चेंज कर सकते। समझ रहे हैं आप? ठीक बात है जी। तो इसलिए जो आप कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, उसी को कंटिन्यू रखो। उस दिन जाकर कोई चेंज मत करो। जो आपने सीखा वही करो, बाकी ऊपर वाला मालिक है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देगा वो। ये बात पक्का है सर। आई मीन खुद ऐसे आपकी बात सुन के एकदम लगता है कि यार आई हैव ऑल्सो प्लेड अ स्पोर्ट। मेरे को ये चीजें बहुत क्लिक करती है जो आप बताते हो। मेरे को लगता है अब जो आने वाली जनरेशन है, जो अब लोग जो नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो स्टार्ट लेवल से जो खेलेंगे, उनको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए समझना कि प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है। रिजल्ट जो है वो अच्छा बुरा दोनों तरफ रहता है, एक प्रोसेस में होना बहुत जरूरी है। तो इस बीच में सर एक छोटा सा एक चीज और जो हमारे लोगों को ऐसे वो होगी क्यूरियोसिटी जो होती है। आप खेलते आए स्टेट खेला आपने, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, वो आपने पीक कब अचीव करा अपने शूटिंग में, जब स्कीट शूटिंग में कि यार अब मैं अपने लाइफ के पीक पे आऊं, जब आपने बहुत लोगों को मैं बताना चाहूंगा सर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करा है बाय हिटिंग अ क्लीन 125 बाय 125। सर टेक्निकल्स में मेरे को प्लीज हेल्प कर दीजिएगा अगर इसमें कुछ गलत है। पर 125 जो मैंने पढ़ा था आपके बारे में, आपने जी क्लीन रिकॉर्ड होल्ड करा था, तो वो आपका पीक था या उससे पहले आप अपना पीक अचीव कर लिया था? क्या प्रोसेस था, किस टाइम पे देखिए, आपने वो? पीक जो होती है ना, पीक हमेशा से मानी जाती है जब आप कंपटीशन में परफॉर्म करते हो। ट्रेनिंग में 125 मारना और मैच में 125 मारना, 125 में से दोनों बहुत ही अलग। क्योंकि मैच में आपको प्रेशर होता है, आपको डर होता है हम्म। हारने का। आपको ये होता है कि आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, आपका मैनेजर देख रहा है, आपका कोच देख रहा है, आपके फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ट्रेनिंग में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। ट्रेनिंग में आप सिर्फ टेक्निक को फॉलो करते हो। आपको सिर्फ उस टारगेट को जैसे तोड़ना है, वो टेक्निक फॉलो करते रहते हो। एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप हर दिन सारे टारगेट मारो, क्योंकि ये जब भी, इसीलिए ये ओलंपिक स्पोर्ट है। समझ रहे हैं आप? अगर ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं होता, इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डिफिकल्टी है, जब भी तो ओलंपिक्स में है। बहुत सारे खेल हैं जो ओलंपिक्स में नहीं है, इसका मतलब वो उस लेवल पे डिफिकल्ट नहीं है, या वो सारे मुल्कों में नहीं खेले जाते हैं। हाँ ये बात ठीक है सर, ये बात बिल्कुल तो ठीक है। पीक में आना, मेरा जो है वो मानना यह है कि आपको कंपटीशन के अंदर ही कंपटीशन को बिल्डअप करना है। और मैं नहीं मानता कि पीक, मेरे साथ बहुत बार हुआ, जब मैं 2015 में कोटा जीता था, हम्म। तो मैं ऑफिशियल ट्रेनिंग वाले दिन, आपको एक छोटा सा टाइम लेना चाहूंगा यहाँ पर। जी। ऑफिशियल ट्रेनिंग में मेरी शूटिंग बहुत खराब हो रही थी। अच्छा। हाँ, आई वॉज अंडर प्रेशर, कि क्या होगा कल मैच है शाम को। तो मैं शाम को खाना खा रहा था अपने कोच के साथ, तो उन्होंने यही बोला कि इस ट्रेनिंग, इसका कोई महत्व नहीं है, अभी कोई रिजल्ट मान्य नहीं होगा, मान्य कल होगा, क्योंकि कल कंपटीशन है। वो 25 टारगेट या 125 टारगेट कल के ज्यादा आपके लिए जरूरी है, ना कि ये ट्रेनिंग के जो हजारों कारतूस आपने चलाए या टारगेट चलाए। और मैं गया और मैंने कोटा जीत गया, क्योंकि मेंटली आपको पता था सब कुछ, फिजिकली आप ट्रेंड थे, टेक्निकली आपको मालूम है। लेकिन किसी दिन होता है कि आप फोकस 100% नहीं करते हो, लेकिन मैच में जब जाते हो तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि आपको फियर होता है अंदर।
जो होता है ना, फियर होता है, टारगेट मिस ना हो जाए, मैं रेडी हूँ जब भी कॉल करूंगा, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, कॉल नहीं करता। तो आपको मैच वाले दिन बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, ना कि फिजिकली। मेंटली प्रिपरेशन, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि ये स्पोर्ट जो है मेंटल स्पोर्ट है, क्योंकि लाखों टारगेट चला चुके हैं हम। इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये कहो कि जी अभी भी आप मिस कर देते हो टारगेट, टारगेट मिस हो सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन। ह्यूमन कैन मेक एन एरर, गलती कर सकता है। बट मैच वाले दिन आप ज्यादा फोकस होते हो, हर चीज आप बहुत बारीकी से देखते हो, आप अपना टाइम लेते हो, सब कुछ प्रोसेस पूरा होता है। आपको जो प्रोसेस है ना, जो ट्रेनिंग में आप प्रोसेस करते हो, वही मैच में रिपीट करना होता है। वही टारगेट है, वही गन है, वही एम्यूनिशन है, वही आप हो। कोई बदलता तो नहीं है ना। सिर्फ रेंज बदल जाती है। अभी मैं इटली में हूँ, वो टोक्यो में है, रेंज वो थोड़ा डिफरेंट होगा बैकग्राउंड। बट ये हम सीख जाते हैं इतने सालों से जो ट्रेनिंग और कंपटीशन चलाकर, कि कैसे एडजस्ट करना है उस रेंज को, नई जगह को। जेट लैग होता है, बहुत सारी चीजें हैं स्पोर्ट में, खाली टारगेट तोड़ना ही नहीं है। डाइट है, आपको कौन सी डाइट खानी है कि जिससे नींद बेहतर आए, कौन सी डाइट नहीं खानी है जिससे आपको जेट लैग में फायदा हो, बहुत सारी चीजें। कितना पानी पीना है जेट लैग के लिए। टाइम डिफरेंस है ना, जैसे अब मैं यहाँ से इटली से टोक्यो जाऊंगा, वहां 7 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अभी जैसे यहाँ इटली में 3 बजे हैं, तो वहां रात के 10 बजे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये 7 घंटों को कैसे आप मैनेज करोगे, क्योंकि बॉडी क्लॉक को टाइम लगता है, बॉडी को एडजस्ट करने में ना, न्यू टाइम जोन को। तो ये सब चीजें सीखी जाती हैं, और ये एक्सपीरियंस से आती हैं। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता एक दिन में। ठीक बात है सर। मतलब मैं खुद सुन के भी ऐसा लगता है यार, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब ये बहुत सालों का है, ये दो ओलंपिक्स का नहीं है, ये पिछले 45 सालों का है जो आपके पास एक रहा है। मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। इसके साथ सर एक चीज और, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़ते हैं आगे, आप टोक्यो से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने कुछ स्पेशल, आप बता चुके हो कि आप कुछ स्पेशल नहीं करते हो, आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, बट स्टिल एक हर आदमी का अपना पर्सनल तरीका होता है करने का। कुछ आपने इटली में, या जब आप इंडिया थे, या जब आप इटली पहुंचे, आपने टोक्यो के लिए कुछ स्पेशल करा हो, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके टोक्यो इवेंट से? कुछ आपने इस बारे में सोचा है? देखिए, बहुत ही सिंपल है। एक्सपेक्टेशन तो हर आदमी को होती है। हर आदमी, जो भी ओलंपिक्स में जो 30 शूटर आ रहे हैं ना इस बार, वो हर आदमी एक ही ड्रीम लेके आ रहा है कि उसे जीतना है। समझ रहे हैं आप? तो मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं जीतना चाहता हूँ, और होना भी यही चाहिए। हारने के लिए कौन जाता है कंपटीशन में? सब जीतने के लिए जाते हैं ना। तो मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं जीतूं अपने कंट्री के लिए। तो स्पेशल क्या है, प्रिपरेशन है, पूरी है। एक्साइटेड हूँ कि फिर से मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है कि मैं जीत सकूं इस बार। हो सकता है जो पिछली बार की जो कमियां थी वो इस बार मैंने पूरी कर ली हो, जो मुझे लगा हो। जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर मैंने काफी काम किया है, ठीक है सर। वी कैन टेक ऑन फ्यू क्वेश्चंस। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं सर, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हमारे पीछे, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। हम एक एक दो दो क्वेश्चंस एक बार पिक कर लेते हैं, जी। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्प हो जाएगा। इसमें सर एक शुभ्स करके एक है, उन्होंने पूछा है कि सर व्हाट नीड्स टू बी डन टू ब्रिज द गैप बिटवीन आवर मेल स्कीड शूटर परफॉर्मेंस एंड फीमेल शूटर्स, आस्किंग जस्ट बिकॉज वी मिक्स्ड टीम स्लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वीकर परफॉर्मेंस फ्रॉम फीमेल। थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा। देखिए, आई थिंक जब मैं कोटा जीता था, तो उससे ओवरऑल स्कीट की जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर आई है। देखिए, पिछली बार हम एक कोटा जीते थे रियो में, इस बार हम 2 कोटा जीते हैं। तो क्या हुआ कि और लोगों को भी ये लगा कि अगर महराज अहमद खान जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो बात अभी लड़कियों में भी होना जरूरी है। उनको ये भी ये लगना चाहिए कि अगर महराज जीत सकता है तो मैं भी जीत सकती हूँ। लड़कियों में अभी प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा कम है। कोच की भी कमी रही है। अभी फिलहाल कोई 2 साल से कोविड है, तो कोई कोच नहीं है हमारे उनके पास। वो अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये सब बहुत ज्यादा चीजें जरूरी हैं। और अभी जहां तक मैं समझता हूँ, आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई लड़कियां हैं, वो काफी फोकस है। टाइम लगता है। देखिए, मुझ जैसे शूटर को इतने साल लगे, तो आप एक साल में तो ये नहीं कह सकते कि वो ओलंपिक चैंपियन बन जाएंगे। यू नीड टाइम। आपको कम से कम बैटर शूटर बनने के लिए कम से कम 7 से 8 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस इतने समय को मान के चलिए शूटिंग के लिए, अगर आप ओलंपिक्स का ड्रीम करना चाहते हो। ओवरनाइट कोई शूटर नहीं बन सकता।
और ना कोई कोच ऐसा दुनिया में है जो ओवरनाइट आपको कहेगा कि ये एक गिलास है, इसे आप पी लीजिए, कल सुबह जाके आप टॉप के स्किट शूटर बन जाएंगे। तो आई थिंक यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड एंड इन अ राइट डायरेक्शन। एक सही दिशा में आपको जाना है। आपका टेक्निकल नॉलेज, आपकी फिजिकल कंडीशन, मेंटल इक्विपमेंट, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आपका कोच परफेक्ट होना चाहिए जो आपको कोच कर रहा है। और टेक्निक सीखने के लिए आपको एक बेहतर और सुपर टॉप नॉच कोच की ज्यादा जरूरत है। तो आपको अपना कोच चुनते वक्त ये जरूर पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का कोच है। तो थैंक यू यही सो मच मैं सर, ये कहना चाहूंगा काफी जिन शुभ साहब ने जो पूछा था। और इंशाल्लाह लड़कियां हैं, अच्छी हैं, वो जरूर ऊपर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। पेरिस में मिक्स्ड स्कीट टीम है, तो आई होप कि एक लड़की मेरे साथ पेरिस में जाए। श्योर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंद्रजीत पटेल ने पूछा है। That's the standard thing between, अच्छा उन्होंने अप्लाई करा है। Okay, एक और क्वेश्चन, how important is nutrition for a shooter? Does it have a role in your game? शायद आप बता चुके हो, थोड़ा सा इसको छोटा सा इसमें। देखिए, न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। हर आदमी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, चाहे वो खिलाड़ी हो या ना खिलाड़ी हो। खिलाड़ी को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। उसे प्रोटीन चाहिए, उसको मल्टीविटामिन चाहिए, उसको ओमेगा 3 चाहिए, उसको विटामिन B12 चाहिए, विटामिन C चाहिए। बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी फटीग को रिकवरी करने के लिए। जब हम हाई लेवल ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर हम फिजिकल कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा टेन्योर है वो बहुत लंबा हो जाता है। 10 से 16 घंटे के बीच में हम काम करते हैं, और आपको खाली टाइम जो मिलता है वो सोने के लिए 8 घंटे मिलते हैं मैक्सिमम। आप 10-12 घंटे नहीं सो सकते जब आप ओलंपिक प्रिपरेशन करते हैं। तो उस 8 घंटे की टाइम में रिकवरी कहाँ से आएगी? रिकवरी जो आती है वो न्यूट्रिशन से आती है। उस वक्त आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। उस वक्त सही डाइट, सही प्रोटीन, सही वाइटामिन आपको चाहिए। आपका जो भी डॉक्टर है या न्यूट्रिशनिस्ट है, उसको पता होना चाहिए कि आपकी फटीग लेवल क्या है, आप कितनी देर में थक रहे हो। अगर आप 400 कारतूस, या मैं तो शूटिंग की बात करूंगा क्योंकि आई डोंट नो अबाउट एथलेटिक्स एंड एनी अदर स्पोर्ट। अगर आप ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, 500 से 700 कारतूस चला रहे हो, तो आप थकोगे पूरे दिन। आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे रेंज पे। गर्मी भी है, आप धूप में हो, आपको पानी का सही इस्तेमाल करना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देनी है बॉडी को, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे साथ मेरा प्रोफेशनल है जो मुझे बताता रहता है या मुझे देता रहता है वो बीच बीच में, ये अभी विटामिन है, ये B12 ले लीजिए आप, ये कैल्शियम है। I lost your voice. Sorry. हेलो। Yes sir. Sorry sir, मेरे को एकदम से आवाज नहीं आई थी। एक बार लास्ट सेंटेंस रिपीट कर देंगे? तो न्यूट्रिशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल आदमी की जरूरत पड़ती है जो कि वेल एडुकेटेड होना चाहिए, जिसे नॉलेज होनी चाहिए न्यूट्रिशन की। ये नहीं कि आप खुद भी कुछ भी दुकान से जाके खरीद के खा लें, क्योंकि फिर डोपिंग वगैरह भी होती है तो जी। आपको पता होना चाहिए क्या चीज आपकी बॉडी को उस वक्त जरूरत है। मैग्नीशियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक आपको प्रोफेशनल आदमी की जरूरत पड़ती है। सर, we'll take one more question. मेरा सर ने अपना बहुत टाइम दे दिया है। We'll just take one more question. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। कैन वी एक्सपेक्ट यू टू बी बैक फॉर पेरिस ओलंपिक्स एज वेल if form is on your side? I am on till LA. That's not not amazing not sir. not not Paris. बहुत अच्छा सर। I would personally want to have a word with you at after every 4 these years to know more about you, आपका experience and everything. I think that is a lot by you. आपने बहुत ज़्यादा हमें ऑडियंस को engage करा, आपने बताया अपने बारे में, and they know like whenever they see you on the television for Tokyo, they know कि we have heard him personally कि कौन मिराज है। मिराज ने अपने बारे में अपने पूरा बताया, and I wish personally all the best to you, sir, from the whole Thank you. team and from the whole nation. And also, we just before we end this thing, we this live session is sponsored by our brand partner Man Matters, and so as a token of gratitude, the brand will be sending you a small gift hamper just to honor you for your event and send you best wishes out there. Okay. Thank you very much. Thank Much you. appreciated. Thank you. Take care.
Thank you so much, sir. Have a nice day. All the best, sir. Thank Thank you. you. See you Bye soon, bye. sir. Bye. Bye. Bye.